Namaskar everyone. Now we'll continue this chapter from exercise 11.2. Okay. Now in 11.2 is that some formulas are there for solving these questions in your book. See on page number 301. Okay. Area of trapezium. On page number 301, area of trapezium is equal to half into sum of parallel side into height. See, what is the trapezium? Trapezium, these are the parallel side. Okay. And height will be from this. This is height. Suppose this is A and this is B, or 2 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter, then what is the area of trapezium? Area of trapezium is equal to 1 by 2 into sum of parallel side into height. Okay, 1 by 2 sum of parallel side into height. So using this formula, we solve these questions of exercise 11.2. So question number 1. The area of a trapezium shaped field. Okay, field is in trapezium shaped. Area is given 480 square meter. The distance between two parallel sides is 115 meter and one of the parallel side is 20 meter long. Find the length of other parallel side. See, in this question, area is given, one side is given, height is given, and then finding this side. Okay. Now using this formula, first we write down the given values. Question 1. Area is equal to 480 square meter. Okay, square meter is meter square, and the distance between two parallel sides, it means that this is height. Distance between two parallel sides means height. Then height is equal to 15 meter, and one of the parallel side, let's A or B, A is equal to 20 meter. Then how you find out this value? See, area is equal to 480 is equal to 1 by 2. A means 20 plus B into height 50. ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हमने. 480 into 2 is equal to divided by multiplied 15 divided by 15 is equal to 20 plus B. ठीक है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. यहाँ 3 है, 15 2 जा 30. तो यहाँ होंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 is equal to 20 plus B. B आपका आंसर है 64 minus 20 is equal to 24 मीटर. आपका आंसर क्या हो गया? 24 मीटर. आपने एक साइड निकाली है, सेकंड साइड आपने फाइंड आउट किए. अब सेकंड साइड आप फाइंड आउट करने के लिए उसको हमने क्या कर दिया? माइनस. ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू 1 by 2 A plus B into H. आपने इसका आंसर फाइंड आउट किए, तो वहां पर आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है जब आपने फॉर्मूला यूज किया है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम. जो टेबल का जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम है. फाइंड इट्स एरिया और इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर लॉन्ग. सी, A is equal to 1 meter and B is equal to 1.5 meter long. ठीक है, sorry 1.2, and perpendicular distance between them is 0.8, means height is given 0.8 meter. Find out area. Put the values in this sum. 1 plus 1.2 into 0.8. ठीक है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0.4. What is the answer? 2.2 into 0.4. 4 2s are 8, 4 2s are 8. But after 2 digit, put decimal point, it means 0.88 meter square. 0.88 meter square. क्या किया हमने? 0.8 यहाँ हाइट, 1 plus 1.2, 2.2, 0.4. ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 0.4 आ गया आंसर. 4 से हमने 22 को मल्टीप्लाई किए. देन आफ्टर दैट पुट द डेसिमल पॉइंट इन आंसर.
Question number 3. Question number 3. The diagram of the adjacent picture. See, this is the figure. First we draw the figure. Okay. Now this is the question. Question is that it is a C shape in trapezium. The diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 by 28 and inner dimension 16 by 20. ठीक है. Find the area of each trapezium shaped section of the frame if the width of each section is same. Height आपकी width 4 centimeter. It means that जो ये height है ये 4 centimeter equal है. ठीक है. ये 4 centimeter और ये भी 4 centimeter. So first we will find out the area of trapezium A1 and A2. Like that A1 is equal to A3 and A2 is equal to A4. क्यों? यहाँ पर 24 है 24, ये 16 16 4 4. जब आपने A1 का निकाल लिया तो A3 भी इक्वल है. आपने A2 निकाला तो A4 भी सेम एरिया है. सो A1 इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H. ठीक है. A प्लस B मीन्स A1 B1 ले सकते हम. ठीक है. A1 B1. What is A1? A1 is equal to 24. B1 is equal to 16. Right? And A2 is equal to 28 and B2 is equal to 20. But height is common. 4 centimeter. Height equal. 1/2. What is A1? 24. What is B1? 16 into 4. ठीक है. 2 2s are 4. 4 plus 6 10. 2 plus 1 3, 3 plus 4 और 3 plus 1 4 plus 2 42. What is the answer? 40 into 2. ये multiplied है. ठीक है. 40 into 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपका A1 कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका A3 में क्या हो गया? A3 is equal to A1 is equal to 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम फाइंड आउट करेंगे A2. A2 is equal to 1/2 A2 plus B2 into H. What is A2? 28 plus 20 into 4. ठीक है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 48 into 2 is equal to 2 8s are 16, 2 4s are 8 plus 1 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब A2 आपका है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. A2 के जैसे ही आपका है A4. A2 is equal to A4 is equal to 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आपके पास ये फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट आपका आंसर बहुत एकदम भी जो आपका इजी मेथड है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस उसी से फाइंड आउट आपको करना है. ठीक है. Now we will come to our question number 4. Question number 4 is that this is the question. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. ठीक है. Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. अब आपके पास में जो रोड की साइड x है तो रिवर की साइड हो जाएंगी 2x. क्यों? ट्वाइस का है. ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. ठीक है. इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज एरिया इज गिवन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. कोई दिक्कत नहीं. आपने इसमें फर्स्ट गिवन वैल्यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर. ठीक है. उसके बाद एरिया गिवन, एरिया इज इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम यहाँ है लेट द साइड along the road be x meter and side along the river be
मीटर, ठीक है, 2x मीटर, राइट। अब आपके पास साइड भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b इंटू h, ठीक है। व्हाट इज द एरिया? एरिया इज इक्वल टू 10500 इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज a, x, व्हाट इज b, 2x, व्हाट इज h, 100, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 50, ठीक है। तो ये 50 डिवाइड हो जाएगा, 10500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 3x, 0 0 गेट कैंसर, 5 1s are 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 1 0. It means that x is equal to 210 divided by 3, 70 meter. X is equal to 70 meter. It means that side along the road is equal to 70 meter and side along the river we'll find out ठीक है। तो 70 मीटर, x इज इक्वल 210 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 70, तो आपके पास में x इज इक्वल टू 70 मीटर एंड 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140 मीटर। तो आपके पास ये आंसर हो गया 140 मीटर एंड 70 मीटर। साइड along the road 70 meter, side along the river 140 meter. Okay, fine. Now we'll continue our question number 5. Now question number 5. This is the shape. In this question, in the figure, ABCD is a pentagon. In pentagon, all sides are equal. Okay. Now this sides is also 15, 15, 15, 15. Okay, fine. Then this side is also 15. All sides are equal in pentagon. Fine. Up by dividing it into two different ways, find its area. We don't know how we'll find out, but we draw this line, and this is the square. This is square, and this is triangle. This is triangle. So first we find out the area of square ABCD and then find out area of triangle ADE. Then we add these two areas, we will get our area of pentagonal shaped. ठीक है? So area of square ABCD is equal to side into side. What is side? CD into DE. ठीक है? What is CD? 15. What is DE? 15. What is the answer? 15 5s are 15 1s are 225 meter square. आपका एरिया क्या हो गया स्क्वायर का? 225 मीटर स्क्वायर. देन वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ABE is equal to half base into height. Half base into height means what is the base? 15 and what is the height? 15. 15 into 15. 15 into 225 divided by 2 is equal to 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1.112.5 meter square. How 15? 15 कैसे है? ये 15 हो गया. 30 minus 15, 30 minus 15, 15. ठीक है. अब आपके पास में दोनों भी आंसर हो गए. 225 plus 102.5. Therefore, area of figure, area of ABCDE is equal to 225 plus 112.5. What is the answer? 0.5 is here. 273.337.5 meter square. क्या आंसर हो गया? 337.5 मीटर स्क्वायर. आपने पहले जो पेंटागोनल शेप्ड है उसे हमने टू फिगर्स में ड्रॉ किए और डिवाइड कर दिए. फिर हमने डिवाइड करने के बाद एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया. एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ स्क्वायर है 225 और एरिया ऑफ ट्राइंगल है 112.5. तो फिर आपने उसे ऐड कर दिए दोनों एरियाज को. हमारे पास में फाइंड आउट हो गया एरिया ऑफ पेंटागोन. ठीक है. Now we will continue on this question. Question number 6.
In question number 6, in this figure 11.21, in this figure, given figure is there, question number 6. A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Now, A, B, C, D is the trapezium with BC is equal to 48 centimeter, CD is equal to 70 centimeter, AD is equal to 40 centimeter. If the perimeter of trapezium, perimeter is equal to 120 centimeter, AB is equal to 15 centimeter, it is given. So, how will you find out the area of this perimeter of trapezium? Means these sides, all these sides. ठीक है, सो हमारे पास में पेरीमीटर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना क्या है? ए बी की साइड ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर. हमारे पास ए बी गिवन नहीं है, तब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं. वो हिंट तो हमें आंसर के लिए हम हिंट क्वेश्चन में नहीं देते. तो पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई. ठीक है, डी ए. पेरीमीटर को यूज करके हम वो आंसर निकाल लें. ए बी प्लस बी सी 48 प्लस 17 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 17. ठीक है, अब 120 is equal to AB plus 15, 5 plus 1, 6, 6 plus 4, 10. AB is equal to 120 minus 105 is equal to 15 centimeter. ठीक है, 15 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना है, तो 1/2 A plus B into H. What is A? 48. What is B? 40 into H 15. A 48, B 40 और H कितना है? 50. ठीक है, अब हम सॉल्व करें इसे. 88 divided by 2 into 15. 2 1s are 2, 44. 15 4s are 60. 15 4s are 60. 660 centimeter square. What is the area? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर. तो यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. The ratio of the length of parallel side of trapezium is 4:1. Question number 7. 4:1 means this is 4x and this is 1x. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? The distance between them is 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर. Area of trapezium is 500 स्क्वायर मीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. नो डाउट हमें फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 A plus B into H. What is area? 500. What is A? 4x plus 1x into H 10. 500 is equal to 1/2 into 5x into 10. 2 1s are 2, 2 5s are 10. ठीक है, अब आंसर है 500 is equal to 5 5s are 25x. x is equal to 500 divided by 25. 25 1s are 25, 2s are, x is equal to 20. x is equal to 20 centimeter. अब x is equal to 20 centimeter means this side. 4x is equal to 4 into 20, 80 सेंटीमीटर. क्या हो गया? 80 सेंटीमीटर. हमने क्या किया है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 A plus B into H. व्हाट इज एरिया? 500. 1/2 into 4x plus 1x into H. 5x into 10. ठीक है,
2 से डिवाइड कर दिए, 2 5 is 10, 500 is equal to 5x into 5, 25, x is equal to 500 upon 25, 20, x is equal to 20 centimeter. Then what is the 4x? 4x is equal to 4 into 20 is equal to 80 centimeter. Okay, now last question is that this is the figure. Now in question number 8, last question of this exercise, this is the figure. Okay, in this figure find the area. See, यहाँ पर आपका 30 है, ठीक है. फर्स्ट वी विल रिमूव दिस, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है. आपके पास जो गिवन फिगर है उस फिगर को हम पहले उसको एक्सप्लेन करें. राइट, दिस इज 4 सेंटीमीटर. ये क्या है? 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ आपके पास में पैरेलल साइड है बट हाइट नहीं है. हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? h1 कैसे होगा? जब ये h1 है तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा? a1. अब h1 कैसे फाइंड आउट करें? दिस हाइट हमें ये तो पता ही नहीं, पर हमें मालूम क्या है, ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस है 4 और ये कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास है 20 सेंटीमीटर. ये कंप्लीट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है ये, तो यहाँ तक के ये वाला डिस्टेंस है 5 + 4. ये डिस्टेंस कितना है? 5 + 4. तो कंप्लीट डिस्टेंस है 20, 20 - 9. h1 is equal to 20 - 5 + 4 is equal to 20 - 9. What is the answer? 11 सेंटीमीटर. आपके पास h1 कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको फाइंड आउट करना है h2. ये हाइट हमें नहीं पता, तो h2, तो ये एरिया क्या हो गया? a2. अब h2 हम फाइंड आउट करें कैसे? सेम डिस्टेंस है 20 20. ठीक है, ये भी 20 है, ये भी 20 है. अब ये डिस्टेंस है आपका 16, तो ये इक्वल ट्रेपेजियम है क्योंकि ये भी 5 ये भी 5, ये 20 ये 20, तो नो डाउट ये हाइट h3, ये है h3 a4 और ये हो गया h4 और एरिया हो जाएगा इसका a4. तो ये h2 और h1 इक्वल है. अब कैसे? सी, ये 16 है, ये कंप्लीट डिस्टेंस है 30, 30 - 16, 30 - 16 14. 14 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये हो जाएगा आपका h2 is equal to h4. कैसे? h2 is equal to h4 is equal to 30 - 16 divided by 2. 14 divided by 2 is equal to 7 centimeter. What is the answer? 7 सेंटीमीटर. ये आंसर कितना हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपके पास में h4 h3 ऑलरेडी है. अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर. a1 is equal to 1/2 a plus b into h1. What is a plus b? 30 and 16. 1/2 30 plus 16. What is h? h कितना है इसका? 11. 1/2 into 46 into 11. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 11 3s are 33, 11 2s are 22 plus 3, 25 centimeter square. What is the answer? 253 centimeter square. क्या आंसर है इसका? 253 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम फाइंड आउट करेंगे a2. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? a2. नाउ a2 इज इक्वल टू a1 आपका आंसर था. कितना है आंसर a1 का? 92 सेंटीमीटर स्क्वायर. नहीं, 11 था ना हमारा. 253 ये था अपना आंसर. 23 इंटू 11, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. a1 का हो गया हमारे पास. अब a2 फाइंड आउट करेंगे. a2 जब हमने फाइंड आउट किया तो नो डाउट आपका a4 भी इक्वल है. a plus b इंटू h2. व्हाट इज a? 20 plus 5, ये भी 5 है, ये भी 5. ठीक है. 20 plus 5 into h2 कितना है? 7. 25 divided by 2 into 7. 7 5s are 35, 7 2s are 14 plus 3, 175 by 2. ठीक है.
सेंटीमीटर स्क्वायर। जब A2 आपका 175/2 हो गया तो A4 भी हो गया आपका 175/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब A2 A4 हो गया आपके पास में। अब हम फाइंड आउट करेंगे A3 इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H4 कितना, सॉरी H3 कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, और 30 प्लस 16 1/2 30 प्लस 16 इंटू 4 2 2 सा 4 46 इंटू 2 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो गया इसका 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर अब आपके पास में A1 A2 A3 A4 चारों भी आ चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका टोटल। करें हम इसे, टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। व्हाट इज A1 हमारा निकला था 253, कितना था 253 प्लस A2 है आपका 175/2 प्लस 175/2 प्लस 92। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें तो आंसर क्या होगा 175 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या हो रहा है 87.5 प्लस 92। आंसर 3, ये 5 5 तो 10। ठीक है, 1 कैरी आ गया। 3 प्लस 7 10 10 17 17 20 2 11 प्लस 8 19 20 27 27 प्लस 5 27 253 प्लस 87.5 प्लस 87.5 प्लस आपके पास में आंसर कितना है इसका A5। हाँ ठीक है, अब 9 प्लस 3 11 11 प्लस 8 19 20 27 27 प्लस 5 32। 3 यहाँ पर कैरी आ गया, 3 प्लस 2 5 520 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अभी भी यहाँ पर आपका एक फिगर हो रहा है, कौन सा, ये जो आपके पास जो एक फिगर था बीच का, ठीक है, जो आपके पास में हमने ये फिगर ड्रॉ किए थे, यहाँ पर ये फिगर है, ये है 16 और ये है 5, तो ये क्या हो गया A5 हमने फाइंड आउट नहीं किया। A5 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें A5 भी हम प्लस A5 कर दे तो प्लस 80 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, ये चारों का हमने आंसर निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रापेजियम से, और ये एक रेक्टेंगल है, इसे भी हम प्लस करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर है आपका 600। A5 भी हमने फाइंड आउट करना है, A5 भी हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह ये क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। So now we'll complete this exercise. We will meet in next lecture with new exercise of 11.3. Okay, thank you.